Hello friends, in this session we will discuss about Legionella. What are Legionella? Legionella are rod-shaped bacteria. They are aerobic bacteria. They are found in natural and man-made water systems, and about 40 species of Legionella are there, out of which Legionella pneumophila is the main species, which is a virulent strain which causes disease in human beings. The entire disease spectrum caused by all Legionella species is known as legionellosis, while Legionella pneumophila causes two clinical conditions, Legionnaire's disease and Pontiac fever. Legionella pneumophila causes community-acquired infections and nosocomial infections both. And of all the various Legionella species, Legionella pneumophila is the major species, and it causes two clinical conditions. One is Legionnaire's disease and one is Pontiac fever. What is the habitat of Legionella pneumophila? It is found in various man-made water environments like hot water systems in hotels and hospitals, cooling water systems, air conditioner systems, tap water, shower systems, industrial coolants, respiratory ventilators, etc. So various water bodies, man-made water bodies are a habitat for Legionella pneumophila. And why they survive in this environment? Because water is stagnant in such environments, the temperature is ambient, about 25 to 40 degrees Celsius, and there are a lot of free-living amoeba in these water bodies. These free-living amoeba, they help in the growth of Legionella pneumophila. So because of all these reasons, Legionella pneumophila is found in various water bodies, man-made and natural, both kind of water bodies. Like in tap water, it can be found in showers, and it enters the human body by inhalation. जो भी वाटर बॉडीज़ में से एरोजोल्स जनरेट होते हैं वाटर में से, वो एरोजोल के ज़रिए पर्सन कैन इनहेल Legionella pneumophila. इनहेल करेंगे, फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर मैक्रोफेज इसको इंजेक्ट करेंगे, और मैक्रोफेज के अंदर जाके वो फैगोसोम बनाएगा, फैगोसोम के अंदर वो रहेगा और लाइजोसोम से फ्यूज़ नहीं होगा, यानी कि फैगोलाइजोसोम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि लाइजोसोम will not be able to digest this bacteria inside the macrophage. So they will survive inside the macrophage and they will multiply inside the macrophages. So this is another virulence factor. This is a skill of the bacteria that it can survive within macrophages and it is not destroyed by the lysosomes. After multiplying in the macrophages, it can spread in different areas. It can go to systemic circulation, and from there it can go to brain, it can go to spleen, liver, different organs of the body. Systemic symptoms में it causes fever, chills, ataxia, tiredness, gastric में nausea, vomiting, diarrhea, headache हो सकता है. Respiratory symptoms, classical features respiratory है, because primarily वो respiratory route से आता है और lungs में लॉज करता है. तो कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब हो सकता है. मसल एक्स हो सकते हैं. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता, लेकिन एल्डरली पीपल हैं, दे आर मोर एट रिस्क. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, दे आर मोर एट रिस्क. पीपल विद क्रोनिक लिवर डिजीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज आर ऑल्सो मोर एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग Legionella pneumophila इन्फेक्शन, एंड दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग सीवियर इन्फेक्शंस. Legionella pneumophila लंग्स में आता है तो मैक्रोफेज में फैगोसोम बन के उसमें मल्टीप्लाई करता है. और क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आएगा? इट विल लीड टू मल्टीलोब्युलर कंसोलिडेशन, इन्फ्लेमेशन एंड एब्सेसेस इन द लंग. देयर कैन बी फीवर, चिल्स, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ, प्यूरेटिक और नॉन प्यूरेटिक चेस्ट पेन. देयर कैन बी हेमोप्टाइसिस रेयरली, एंड देयर कैन बी प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड इट कैन इवन बी फेटल. तो मेन उसका हैबिटेट है वाटर सिस्टम्स. तो बिल्डिंग वाटर सिस्टम में वो सर्वाइव करेगा. वहाँ पे स्टेग्नेशन है, ऑक्सीजन है, फ्री लिविंग अमीबा है वाटर में, टेम्परेचर एम्बिएंट होता है, और पाइप में अंदर मटेरियल वो सब डिपॉजिट होता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो फूड वगैरह भी मिल जाता है. तो ऐसे वाटर सिस्टम में वो धीरे धीरे करके मटेरियल डिपॉजिट होने लगते हैं, तो उसमें एक फिल्म बन जाती है मटेरियल की,
और उस एनवायरनमेंट में मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और बैक्टीरियाज उसमें बायोफिल्म बना देते हैं और बायोफिल्म बन जाती है तो उसमें स्लाइम लेयर होती है, उसकी वजह से वो बैक्टीरियाज उसके अंदर बायोफिल्म के अंदर सेफ़ रहते हैं और ऐसे बायोफिल्म फॉर्मेशन वाले एनवायरनमेंट में लिगोनिला निमोफिला सर्वाइव कर सकते हैं पाइपलाइंस के अंदर। एंड उन पाइपलाइंस के ज़रिए वो वाटर में they can reach the host, human host, and they can get they can enter the lungs of the human host by inhalation of the aerosols, and they can enter the GI tract by ingestion, and they can lead to various systemic symptoms. लिगोनिला 35-40 डिग्रीज ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और 50 डिग्रीज या उससे ऊपर के टेम्परेचर में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर किल्ड। सो दैट इज़ नॉट ए सूटेबल टेम्परेचर। और 20 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो उसमें वो वायबल रहते हैं, भले वो मल्टीप्लाई नहीं करते बट दे रिमेन वायबल। ये पाइप का फोटोग्राफ है, मतलब एनिमेटेड। एक पाइप के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह ट्रैप हो गए हैं, उन्होंने स्लाइम सेक्रेट किया, स्लाइम सेक्रेट करके बायोफिल्म फॉर्मेशन कर दिया, उसमें वाटर इज़ फ्लोइंग, फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरियाज भी सीन। ग्रेजुअली द बैक्टीरियाज विल गेट कलेक्टेड इन दिस बायोफिल्म एंड बायोफिल्म बड़ी होती जाएगी और ऐसी बायोफिल्म में बैक्टीरियाज के लिए एक सेफ हेवन होता है। दे कैन सर्वाइव वेरी वेल इनसाइड दिस बायोफिल्म एंड द नंबर विल कीप इंक्रीजिंग हेंस। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एजेड पाइप है, इसमें ट्यूबिंग में वाटर स्टेगनेशन का इशू रहेगा, वेट रहेगी ट्यूब, उसमें वार्म टेम्परेचर्स है, फूड डिपॉजिट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑक्सीजन है। ये सारे एनवायरनमेंट्स फेवरेबल कंडीशंस है फॉर ग्रोथ ऑफ लिगोनिला निमोफिला इन द पाइपलाइंस। एंड अलग अलग बिल्डिंग्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में जो वाटर सिस्टम्स हैं, कूलिंग सिस्टम्स हैं, हॉट वाटर सिस्टम्स हैं, वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटर्स वगैरह हैं, उन सब जगहों पे बायोफिल्म फॉर्मेशन हो सकता है। उन सब जगहों पे लिगोनिला निमोफिला कैन सर्वाइव इनसाइड द पाइपलाइन सिस्टम्स। You can see this pipe, cross section of the pipe which has lot of biofilm inside. ऐसी बायोफिल्म में lots of bacteria can survive in this kind of a biofilm. Particularly Legionella pneumophila can survive and it can lead to various respiratory issues in people. ये एक और क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी अंदर बायोफिल्म फॉर्मेशन हो गया है जॉइंट में। अब लिगोनिला निमोफिला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है प्राइमरीली, वहाँ से वो ब्रेन में भी जा सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह कर सकता है, फिर लीवर, स्प्लीन एक्सेट्रा सभी ऑर्गन्स में इन्वॉल्व हो सकता है। और उसका डायग्नोसिस करना है तो प्राइमरीली रेस्पिरेटरी सैंपल्स लिए जाएंगे, स्पूटम, लंग फ्लूइड्स, ट्रांसब्रोंकियल एस्पिरेशन, ब्रांकियोलर लवाज और ब्लड। माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसमें ल्यूकोसाइट दिखेंगे बहुत सारे, लेकिन बैक्टीरिया आर रेयरली सीन इन केस ऑफ लिगोनिला। डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कैन बी परफॉर्म, जिसमें डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। फिर कल्चर में लिगोनिला निमोफिला कैन बी ग्रोन from sputum and other respiratory secretions. They can be grown on BCYE agar. BCYE agar मतलब buffered charcoal yeast extract agar, buffered charcoal yeast extract agar, और उसमें सिस्टीन और आयरन सॉल्ट्स होते हैं। लिगोनिला निमोफिला रिक्वायर सिस्टीन एंड आयरन सॉल्ट्स फॉर इट ग्रोथ। तो जो भी कल्चर मीडियम बनाया जाता है उसके लिए उसमें सिस्टीन और आयरन सॉल्ट्स डाले जाते हैं। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनोएसे, लेटेक्स एग्लूशन टेस्ट दे आर अवेलेबल। स्विमिंग पूल्स में भी हो सकता है, ऑल्दो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता बट पीपल कैन एक्वायर दिस फ्रॉम द स्विमिंग पूल्स। और स्विमिंग पूल में भी वाटर में अंदर बायोफिल्म फॉर्मेशन हो सकता है और वो बायोफिल्म के एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव वेरी वेल एंड पीपल कैन एक्वायर थ्रू द स्विमिंग पूल्स एज वेल। इवन चिल्ड्रन कैन एक्वायर लिगोनिला निमोफिला। सो इसके मेन हाइलाइट्स थे कि वाटर बॉडीज़ में, मैन मेड वाटर सिस्टम्स में सर्वाइव करता है, रेस्पिरेटरी इलनेस करता है प्राइमरीली, और BCYE अगार
Buffered charcoal yeast extract agar is a medium with cysteine and iron salts, which is used for growing Legionella pneumophila. With this, we end this topic. Thank you.